several election goof-ups or campaigning goof-ups after the recent one involving a party pamphlet in which Gujarat Chief Minister Narendra Modi was praised. Here's another embarrassment for the Congress. Delhi Chief Minister Sheila Dikshit in Agra, one understands, praising Narendra Modi for the development that has taken place in the state of Gujarat. Listen in. गुजरात में कार्य हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है बस। और उनकी सरकार चुनी जाती है। क्यों सरकारें बार बार आ रही हैं? क्योंकि वो विकास करती है। जैसे मैंने असम को आपको दिया कि नहीं उदाहरण दिया, उसी का दिया कि वहां पर भी कार्य हुआ, इस वजह से सरकार। Well, let's speak with our National Affairs Editor, Bhupendra Chaubey, joining us on the phone line. Bhupen, very interesting that rather categorically, Sheila Dikshit explaining why the Narendra Modi government is repeatedly voted back into power in Gujarat, saying that it is the development done in the state, certainly not misquoted there, it's as clear as it gets. Oh, it's a delicious political irony of sorts, that we are now entering a situation where there are more and more Congress leaders who are turning out to be those who are praising the Gujarat Narendra Modi for his brand of developmental work, whereas the number of supporters that Mr. Modi has within his own party, the BJP, seems to be reducing. Sheila Dikshit is the second Congress leader who has come out speaking publicly, praising publicly the kind of good work that's been done by Narendra Modi as he himself looks at himself as the CEO of the state of Gujarat. But very importantly, Sheila Dikshit was also trying to make out the distinction. The question that was put to her was that what does she think about the kind of developmental policies which have taken place within the state of Uttar Pradesh. The question was in the context of what Mayawati has done, whether she agrees with the kind of work which has been done by Mayawati or not. It was in response to that question that while trying to draw a comparison between the state of Assam, which is ruled by the Congress, and the state of Gujarat, which is ruled by the BJP, that Mr. Dikshit ended up inadvertently, unintentionally perhaps, praising the Gujarat Chief Minister. Right, in Gujarat, of course, there was a recent ad that came out. That ad put out by the Congress party also praised the Chief Minister amongst other previous Chief Ministers of the state. At that time, the Congress had said this was a subtle dig and people had not understood the humor behind it. Let's now listen into Sheila Dikshit once again, see if there was anything amusing in that particular comment. गुजरात में कार्य हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है बस। और उनकी सरकार चुनी जाती है। क्यों सरकारें बार बार आ रही हैं? क्योंकि वो विकास करती है। जैसे मैंने असम को आपको दिया कि नहीं उदाहरण दिया, उसी का दिया कि वहां पर भी कार्य हुआ, इस वजह से सरकार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी के मुरीद हो गए हैं। जी हां, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री ने खुद नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, वो भी दिल खोलकर। दरअसल चौहान अहमदनगर में कृषि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे। गुजरातचा कृषी विकास दर हा गेल्या 10 वर्षापासून 11%। आता गुजरातची परिस्थिती आपल्याला माहिती आहे, अर्थात नर्मदेचं पाणी आलेलं आहे, पण त्यांनी जी शेततळी निर्माण केलेली आहे, आपण जेवढी शेततळी गेल्या 10 वर्षात तयार केली तेवढी ते एका वर्षात तयार करतात। आता त्यामध्ये काही मूलभूत बदल आहे। आपण जो रिच टू व्हॅली जलसंधारणाचा प्रयोग करतो ते न करता सरळ शेततळी निर्माण केली, प्लास्टिकचा वगैरे कागद टाकून केलेली। पण त्यामुळे त्याचा परिणाम असा होतोय की त्यांचा विकास दर 11% आहे। न भूतो न भविष्यती असा 11% संशोधन दर आहे, आपला मात्र 4-4.5%कडे। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसे कि कांग्रेस गोधरा कांड के बाद हुए गुजरात दंगे के लिए जिम्मेदार मानती है, उसकी तारीफ एक कांग्रेस शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री की जुबान से सुनकर लोगों को आश्चर्य हो रहा है। आइए आपको एक बार फिर सुनाते हैं क्या कहा सीएम साहब ने। गुजरातचा कृषी विकास दर हा गेल्या 10 वर्षापासून 11%। आता गुजरातची परिस्थिती आपल्याला माहिती आहे, अर्थात नर्मदेचं पाणी आलेलं आहे, पण त्यांनी जी शेततळी निर्माण केलेली आहे, आपण जेवढी शेततळी गेल्या 10 वर्षात तयार केली तेवढी ते एका वर्षात तयार करतात। आता त्यामध्ये काही मूलभूत बदल आहे। आपण जो रिच टू व्हॅली जलसंधारणाचा प्रयोग करतो ते न करता सरळ शेततळी निर्माण केली, प्लास्टिकचा वगैरे कागद टाकून केलेली। पण त्यामुळे त्याचा परिणाम असा होतोय की त्यांचा विकास दर 11% आहे। न भूतो न भविष्यती असा 11% संशोधन दर आहे, आपला मात्र 4-4.5%कडे। हाल ही में समाज सेवी अन्ना हजारे ने जब नरेंद्र मोदी के काम की तारीफ की थी, तब कांग्रेसियों ने इतना हो हल्ला मचाया था कि अन्ना हजारे को सफाई देनी पड़ी थी। लेकिन अब उनके ही जिम्मेदार सीएम ने मोदी की तारीफ करके कांग्रेसियों के मुंह पर ताला जड़ दिया है।
दरअसल पृथ्वीराज चौहान मोदी के कृषि मैनेजमेंट से बेहद खुश हैं, क्योंकि गुजरात में पिछले एक दशक से कृषि विकास दर 11% से अधिक है, जबकि महाराष्ट्र में ये दर केवल 4.5% ही है। TV9 रिपोर्ट, मुंबई। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें और भी बाकी हैं। વાત છે અમદાવાદની, જ્યાં જૈન સમાજનો સમારંભ હતો। तरुण है, काम से भी तरुण है, और हमें तो यही विश्वास और हमारी यही प्रार्थना है, वो जब तक जिए तब तक तरुण जीवन। જેના મંચ પર નરેન્દ્ર મોદી અને બાબા રામદેવ મુખ્ય મહેમાન હતા અને આ પ્રસંગે કોંગ્રેસના રાજ્યસભાના સાંસદ વિજય દરડા પણ સ્ટેજ પર પ્રવચન આપી રહ્યા હતા। પ્રવચન ચાલુ હતું ત્યારે જ મોદી મંચ પર આવ્યા અને તેમનું સ્વાગત થતું હતું ત્યારે વિજય દરડાએ મોદીને કહી નાખ્યા શેર। मैं जानता हूं कि ये जो हलचल जो हुई है यहाँ पर, ये हलचल ये गुजरात का एक ऐसा शहर है जिनकी जो दहाड़ है और जो गुजरात की शान भी बन गया और गुजरात का परिचय बन गया। આ કાર્યક્રમમાં નરેન્દ્ર મોદી સાથે વિજય દરડા ચર્ચાઓ કરતા પણ નજરે પડ્યા। દરડાએ જે રીતે મોદીના સ્ટેજ પર વખાણ કર્યા હતા તે વખાણ મોદીને પણ યાદ રહ્યા અને જ્યારે મોદીએ સંબોધન કર્યું ત્યારે દરડાના વખાણને યાદ કરતા સાથી દીધું કોંગ્રેસ પર નિશાન। મોદીએ કહ્યું કે દરડાએ જે રીતે મારા વખાણ કર્યા છે તેમનું તેને પરિણામ ભોગવવું પડશે। કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડ દરડાને નોટિસ ફટકારી સજા પણ આપી શકે છે અને કદાચ દરડા મીડિયામાં હોવાથી તેને રાહત મળે તેવો પણ ટોણો માર્યો। कल सुबह ब्रेकिंग न्यूज हो कि कांग्रेस हाईकमांड ने विजय दरड़ा को नोटिस भेजा। कांग्रेस हाईकमांड ने तय किया है कि विजय दरड़ा जैसे कांग्रेस के एमपी चुनाव का वर्ष है और गुजरात में जाकर के मोदी की तारीफ करें, इससे बड़ा कोई इनडिसिप्लिन नहीं हो सकता है, इसलिए उनको निकाल दिया जाए। एक कांग्रेसी नेता द्वारा मोदीना वखाण थता ज विवाद पण सर्जायो छे। कांग्रेस मोवडी मंडळे सांसद दरड़ा पासे खुलासो मांग्यो छे तो आ तरफ भाजपे कांग्रेस पर प्रहार करता जणाव्युं के मुख्यप्रधान नरेंद्र मोदीनो विकास मंत्र सौ कोईने चकित करी दे छे, એટલે જ લોકો તેમના વખાણ કરે છે। कांग्रेसना संसद सभ्य विजय दरडाए एक समारंभमां नरेंद्र मोदीने शेरनी साथे सरखामणी करी। आ एमनो पोतानो अंगत अभिप्राय छे, आ कांग्रेस पक्षनो अभिप्राय नथी। हकीकत में ये छे कि अमारा संसद सभ्य नरेंद्र मोदी ने सारी रीतना ओळखता नथी। गुजरातनी 6 करोड़नी प्रजा एमने सारी रीतना ओळखे छे कि आ जंगलना शेर नथी, नरेंद्रभाई ए आदमखोर शेर छे। नरेंद्रभाई जे रीते गुजरातनो विकास कर्यो छे अने राजकीय रीते नरेंद्रभाई खूब विरोधना वंटोळ वच्चे पण कांग्रेसनी बधी युक्ति प्रयुक्तिओ केंद्र सरकारना अन्यायो छतां पण नरेंद्रभाઈએ जे रीते गुजरातनो विकास करीने एक राजनेता तरीके जे खूब मोटी प्रतिष्ठा प्राप्त करी छे एने कारणे बधा नरेंद्रभाईना वखाण करे छे। जे रीते उर्दू अखबारना संपादक अने सपाना नेता सिद्दीकीने मोदीનું इंटरव्यू लेवानुं भारे पड्युं। पार्टी हाथ ऊंचा करता कही दीधुं कि सिद्दीकी पार्टीमां ज नथी। ત્યારે કોંગ્રેસના નેતા વિજય દરડાને જે રીતે મોદીના સ્ટેજ પર બાબા રામદેવની હાજરીમાં વખાણ કર્યા તેને જોતા આગામી દિવસોમાં પગલાં લેવાય તો પણ નવાઈ નહીં।
જોકે દરડા પર કોંગ્રેસ શિક્ષાત્મક પગલાં લઈ શકે છે તેવી જાહેરમાં ટકોરને જોતા કોંગ્રેસ કઈ નીતિ અપનાવે છે તે જોવું રહ્યું. અર્પણ કાયદાવાલા સાથે બ્રિજેશ દોશી, TV9 અમદાવાદ.